Welcome students, today we are going to start with the chapter number 3, Money and Credit from your economics book, class 10th. Today in this chapter we are going to study about money and how to do transactions from credit. Money and as a medium of exchange. Money is like a medium of exchange. We can make it as a medium of exchange to get the things. Let us study. The use of money spans a very large part of our everyday life. Look around you and you would easily be able to identify several transactions involving money in a single day. Can you make a list of these? In many of these transactions, goods are being bought and sold with the use of money. In some of these transactions, services are being exchanged with money. For some, there might will be any actual transfer of money taking place now, but a promise to pay money later. आजकल हम एक मनी को एक ना पैसे को धनम को हम एक तरह का मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शन यूज़ कर रहे हैं. हम उसको एक मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शन यूज़ कर रहे हैं. हम एक तरह का मतलब कि हम ऐसे एक तरह का एक दूसरे को एक्सचेंज करके हम चीज़ें ले रहे हैं, रिसोर्सेज ले रहे हैं ताकि हम अपनी नीड्स पूरी कर सकें. दैट इज़ नोन एज ए मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शन. So now, have you ever wondered why transactions are made in money? The reason is simple. A person holding money can easily exchange it for any commodity or service that he or she might want. Thus, everyone prefers to receive payments in money and then exchange the money for the things that they want. अगर बाटर सिस्टम होता तो फिर अगर कोई जैसे फॉर एग्जांपल कोई शूज़ वाला होता है, यहाँ पे एग्जांपल दे रखी है शूज़ वाला. आई विल गिव यू शूज़ फॉर योर वीट. तो आपके पास वीट होना चाहिए तभी आपको शूज़ मिलेंगे. तो आई डोंट नीड शूज़, आई नीड क्लोथ्स. उसको क्लोथ्स चाहिए, इस इंसान को क्लोथ चाहिए पर इसको मिलेगा शूज़. तो फिर ये बाटर सिस्टम एक तरह का ना चल नहीं रहा था, तो हमने एक मनी एज ए मीडियम लिया. Thus everyone prefers to receive money and then exchange the money for the things that they want. So now, the shoe manufacturer will first exchange the shoes that he has produced for money and then exchange the money for wheat. Imagine how much more difficult it would be if any shoe manufacturer had to directly exchange shoes for wheat without the use of money. He would have to look for a wheat growing farmer who not only wants to sell wheat but also want to buy the shoes in exchange. अगर एक शूज़ वाले को वीट चाहिए तो फिर उसको ऐसा एक व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जिसको जो वीट के बदले शूज़ ले ले. पर जैसे अभी हमने देखा है कि ना इस व्यक्ति को वीट तो बेचना है पर इसको शूज़ नहीं चाहिए, इसको क्लोथ चाहिए. तो फिर ऐसे बहुत सारा एक्सचेंज होता है जिससे बहुत सारी डिफ़िकल्टीज होती. तो फिर हमने एक तरह सोर्स लिया, मनी ली. हमने मनी को एक मीडियम बनाकर हमने अब कुछ भी ले सकते हैं. हमारे पास 10 रुपीज़ है तो हम कुछ भी ले सकते हैं, उससे कुछ भी बाय कर सकते हैं. 100 रुपीज़ है, कुछ भी बाय कर सकते हैं, हम कुछ मर्जी जाए. This is both parties have to agree to sell and buy each other communities. This is known as double consistence of wants. What is double consistence of wants? क्या होता है कि अगर एक व्यक्ति को कोई शूज़ चाहिए और दूसरे व्यक्ति को वीट चाहिए तो वो वीट के बदले शूज़ ले लेगा, अगर उसे शूज़ और वह शूज़ के बदले वीट ले लेगा. तो दिस इज नोन एज डबल कंसिस्टेंस ऑफ वांट्स. What a person decides to sell is exactly what the system where the goods are directly exchanged without the use of money. What a person desires to sell is exactly what other wishes to buy. In a barter system, अब आए बाटर सिस्टम की. बाटर सिस्टम में होता है कि ना जैसे एक गुड्स देना, गुड्स के बदले गुड्स लेना. दैट इज नोन एज बाटर सिस्टम वेयर द गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज्ड विदाउट द यूज ऑफ मनी. उसमें मनी यूज ही नहीं होती थी. डबल कोइंसिडेंस ऑफ द वांट्स इज एन एसेंशियल फीचर. In contrast, in an economy
where money in use, money by providing the crucial intermediate step, eliminates the need for double consistence of bonds. It is no longer necessary for those shoemaker to look for a farmer who will buy these shoes and at the same time to sell him wheat, as he has to do is find a buyer for his shoes. तो फिर अब इसको अगर इसके पास मनी आ जाएगी तो इसको एक ऐसा व्यक्ति नहीं ढूंढना पड़ेगा जो इसको वीट दे सके और शूज ले सके। बस इसको एक मनी चाहिए, मनी से ये अपना वीट खरीद सकता है, कुछ मर्जी ये चाहे वो खरीद सकता है, और इसको भी एक मनी चाहिए जिससे ये अपने क्लोथ्स खरीद सकता है। लेट्स गो। So now all he has to do is find a buyer for his shoes. Once he has exchanged the shoes for money, he can purchase the wheat for any other opportunity in the market. Since money acts as an intermediate in the exchange of process called the medium of exchange. तो फिर उसको अब कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं, उसको बस अपने शूज बेचने हैं और उसको एक वीट वाला ढूंढना है, वीट वाला उसको पैसे देने हैं और एक तरह का मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह मनी को ऐसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनाकर वो अपनी चीजें ले सकता है। Modern forms of money. What are the modern forms of money? We have seen that money is something that can act as a medium of exchange in transactions. Before the introduction of coins, a variety of objects were used as money. For example, since the objects were used as money. For example, since the very early ages, Indians used grains and cattle as money. Thereafter, there came the use of metallic coins, gold, silver, copper coins, a phase which continued well into the last century. So पहले क्या होता था? पहले इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाइंस के इंट्रोडक्शन से पहले क्या होते थे? लोग ना जो होते थे ग्रेन्स का यूज करते थे या कैटल का यूज करते थे एज दी मनी। वो ग्रेन दे देते थे एक दूसरे को कुछ लेने के लिए। जैसे अगर किसी को कोई क्लोथ्स लेने हैं तो वो क्या करेंगे? वो ये नहीं करते थे पहले, वो क्या करते थे? ग्रेन्स ले लेते थे और ग्रेन्स दे देते थे उस व्यक्ति को, तो उसे मनी की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। वो ग्रेन ले लेता था और जो सामान क्लोथ जो उसे लेना था वो क्लोथ ले लेता था। Thereafter came the use of metallic coins. उसके बाद मेटेलिक कॉइन्स आने लग गए, जैसे गोल्ड के आने लग गए कॉइन्स, सिल्वर के आने लग गए, कॉपर के आने लग गए। अब जो अब तक चल रहे हैं, अब हमारे कौन से चल रहे हैं? अब हमारे अब भी कॉइन्स पेपर्स चल रहे हैं। अब पेपर्स चल रहे हैं, अब स्टील चल रही है। तो हम गोल्ड से चले थे और स्टील पर आ गई है। करेंसी। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी, पेपर नोट्स एंड कॉइन्स। अब हम गोल्ड था, पहले हमारे पास सिल्वर था, कॉपर था, फिर उसके बाद हम पेपर पर आ गए हैं क्योंकि अब सारा गोल्ड लूटेड हो गया है। अनलाइक द थिंग्स that were used as money earlier, modern currency is not made of precious metals such as gold, silver and copper. And unlike grain and cattle, they are neither of everyday use. अब कह रहे कि ना पहले मनी तो बड़ी अच्छी थी, गोल्ड की थी, तो फिर अच्छे से थी। अब चल रही है नोट्स की, पेपर की। एंड अनलाइक ग्रीन और द कैटल, और कैटल और ग्रीन का वो वाला सिस्टम ही नहीं रहा। दे आर नीदर ऑफ एवरीडे यूज। द मॉडर्न करेंसी इज विदाउट द यूज ऑफ इट्स ओन। So now, then why it is accepted as a medium of exchange? It is accepted as a medium of exchange. क्यों मॉडर्न करेंसी को एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों एक्सेप्ट किया? इसलिए किया क्योंकि इट मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज द करेंसी इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट। ये जो हमारी करेंसी है अभी ऑथराइज्ड होगी ये बाय द गवर्नमेंट, बाय द रिजर्व बैंक। इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इश्यूज द करेंसी। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ना वो करेंसी नोट्स बनाता है ऑन द बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर जो हमारे नोट्स बनते हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाता है। एज पर इंडियन लॉ, नो अदर इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इश्यू करेंसी। अगर हमें जो पैसे मिल रहे हैं उसके ऊपर लिखा होगा RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो फिर वहाँ पे ही बनता है पैसा, फिर और कहीं नहीं बन रहा, और कहीं बन भी नहीं सकता, वो इलीगल कहा जाएगा। मोreover, the law legislates the use of the rupee as a medium of the payment. अब हम रुपी एज ए यूज ऑफ रुपी पेमेंट की
तरह यूज कर रहे हैं, that cannot be refused in settling transaction in India. उसको हम कोई रिफ्यूज नहीं कर सकता ट्रांजैक्शन करने के लिए. नो इंडिविजुअली इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज अ पेमेंट मेड इन रुपीज. Hence, the rupees is widely accepted as a medium. तो of फिर exchange. कोई भी अगर आप मार्केट जाएं तो अगर आप उसको नोट्स दें वो रिफ्यूज नहीं कर सकता, उसको भी चाहिए और आपको भी चाहिए. So, क्वेश्चन पूछा जाएगा why the modern rupee is widely accepted as a medium of exchange in India. उसका आंसर यही है because it is issued by the central government, by the Reserve Bank of India, and no individual can refuse to take it back. Now, deposits with bank. The other form in which the people hold money is the deposits with bank. अब जो मनी आ रही है वो हम डिपॉजिट कर देते हैं सेफ जगह पर, बैंक पर. At a point of time, people need only some currency for their day-to-day needs. For instance, workers who receive their salaries at the end of each month have extra cash at the beginning of the month. What do people do with this cash? They deposit it in the banks by opening a bank account. अब ये जो पैसे आ रहे हैं हमारे पास एक्सचेंज करने के बाद वो हम बैंक पर डिपॉजिट कर देते हैं. Yes, banks accept interest. People also have to have the provision to withdraw the money as and when they require. Since the deposits in the bank account can be withdrawn on demand, these deposits are called demand deposits. This is important. So, हम कभी भी जाकर बैंक में जाकर जो हमारे डिपॉजिट थे उसे हम विड्रॉ कर सकते हैं. विड्रॉ का मतलब निकाल सकते हैं बैंक में से. ये हम कभी भी अपना डिपॉजिट जो हमने डिपॉजिट किया हुआ है मनी उसको कभी निकाल सकते हैं ऑन डिमांड. सो इट इज नोन एज डिमांड deposit. Since the deposit in the bank accounts can be withdrawn, जो हमारे पास मनी हमने डाली है वो कभी भी हम एक्सेस कर सकते हैं. तो on demand. That is known as demand deposit. Yes, demand deposits offer another interestingly facility. This facility is which led it in its essential characteristics of money, that of medium of exchange. You would have heard of payments being made by checks instead of cash. हाँ, कभी कभी हमने देखा है कि जो हमारी पेमेंट है वो मनी के थ्रू नहीं हो रही. कभी कभी हमारे चेक्स भी यूज हो रहे हैं इंस्टेड ऑफ कैश. कभी आपने कहीं गए हुए आजकल तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रही है गूगल पे लाइक दिस. तो पहले क्या होता था ये जो चुक से होती है अभी भी गवर्नमेंट में फॉर्मली, तो फिर आप चेक से भी कर सकते हैं. फॉर द पेमेंट थ्रू check, the payer who has the account with the bank makes out a check for the specific amount. A check is a paper. Check is a paper. This is the definition of a check. A check is a paper instructing the bank to pay a specific amount from the person's account to the persons whose name the check has been issued. ये एक तरह का सिंपल पेपर है जिसमें हम बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट, हम अपनी अमाउंट लिख सकते हैं. ये जैसे लिखी हुई 57,000 ओनली, तो हम अपनी अमाउंट लिख सकते हैं और पर्सन अकाउंट और अपना अकाउंट की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं. और ये उस नेम ऑफ द चेक हु हैज बीन इशूड, उसमें तीन चीजें होती हैं. एक तो नाम, उसका नाम और उसका अमाउंट or the date, and so these are the three things which are on the check, which has to be which has to be instructed to the bank to pay a check, and its signatures are very important. Check payments. Thus we see that demand deposits share the essential features of money. The facilities of check against demand deposit make it possible to directly settle payments without the use of cash. अब क्या है जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं इन्होंने कैश का जो है एसेंशियल फीचर है. जो कैश फैसिलिटी ऑफ चेक्स अगेंस्ट डिमांड डिपॉजिट्स मेक्स इट पॉसिबल टू डायरेक्टली सेटल पेमेंट्स विदाउट यूज ऑफ कैश. जो ये अभी वह फैसिलिटी आ गई है चेक्स की, उससे हम क्या हो गया है कि हमारे जो डिमांड्स ऑफ डिपॉजिट हमने जो अभी किया है, व्हाट इज द डिमांड डिपॉजिट ऑन द डिमांड हम अपने डिपॉजिट्स ले सकते हैं दोबारा. दैट इज नोन एज डिमांड डिपॉजिट. इसने कैश को रिप्लेस कर दिया है. कैश को अब रिप्लेस हो गया है.
अब हम दो तरीके से हम अपनी कैश को विड्रॉल कर सकते हैं। Since demand deposits are accepted widely as a means of payment, along with currency, they constitute money in a modern economy. You must remember the role of the banks play here. But here, for the banks, there would be no demand deposits. There would be and no payments by the checks against these deposits. The modern forms of money, currency, and deposit are closely linked to the working of the modern banking system. अब हमें पता होगा कि बैंक का क्या प्ले रोल होता है, तो फिर बट फॉर द बैंक्स देयर वुड बी नो डिमांड डिपॉजिट एंड नो पेमेंट। जो पेमेंट है, नो डिमांड्स है, उनकी कोई डिमांड नहीं है डिपॉजिट की, कोई पेमेंट ऑफ चेक्स नहीं है अगेंस्ट दीज डिपॉजिट्स। So now, the modern forms of current money. कौन सी होती है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी? एक तो करेंसी होती है, डिपॉजिट्स होती है। करेंसी होती है जैसे कॉइन्स होते हैं और जैसे पेपर नोट्स होते हैं, और डिपॉजिट्स कौन से होते हैं जो हम बैंक में मनी डिपॉजिट करते हैं। And they are only related to the forms of check or closely linked to the working of modern banking system. They constitute the modern banking system. लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स। लोन एक्टिविटी कौन सी लोन एक्टिविटी होती है बैंक्स की? लेट अस टेक द स्टोरी ऑफ द बैंक्स फर्दर। अब हम बैंक्स को फिर से एक्सपैंड करते हैं। व्हाट डू द बैंक्स डू विद द डिपॉजिट which they accept from the public? This is an interesting mechanism at work here. जो डिपॉजिट होती है बैंक के अंदर वो एक्सेप्ट क्यों करते हैं पब्लिक? तो फिर हम ये देखते हैं। Banks keep only a small portion of their deposit as a cash for themselves. For example, the bank in India these days hold about 50% of their deposit as cash. They keep the provision to pay the depositors who may come to withdraw the money from the bank on any given day. अब क्या करते हैं बैंक छोटा सा प्रोपोर्शन, छोटा सा हिस्सा उस मनी का, जो डिपॉजिटेड मनी है ना, उसका एक छोटा सा हिस्सा अपने पास रख लेते हैं। नियरली 15% ऑफ देयर डिपॉजिट्स 15% रख लेते हैं। और वो 15% किसमें काम आता है? वो 15% उस चीज़ में काम आता है कि कोई डिपॉजिट निकलवाने आया है, कोई पैसे निकलवाने आया है कि मुझे पैसे दे दो, मेरे जो जमा वाले पैसे हैं उनमें से इतने रकम मुझे वापस चाहिए, तो वो कैश उसमें काम आता है वापस देने में। Since on a particular day only some of its money depositors who came to withdraw cash, the bank is able to manage with the cash. फिर बैंक क्या कर पाता है? वो मैनेज कर पाता है और उसे दे पाता है कैश जो वो मांग रहा है। बैंक use the major proportion of deposits to extend loans. अब जो मेजर प्रोपोर्शन ऑफ डिपॉजिट्स है वो लोन देने में चुक जाता है बैंक का। अब क्योंकि लोग लोन ज़्यादा मांगते हैं रादर देन दी डिपॉजिटिंग विड्रॉल। This is a huge demand for loans for various economic activities. We shall read more about the following section. Bank you make use of the deposit to meet the loan requirement of the people. अब जो बैंक के पास जो मनी होती है वो लोन रिक्वायरमेंट्स में पूरी हो जाती है। इन दिस वे द बैंक मीडिएट्स बिटवीन दोज हु हैव द सरप्लस फंड्स एंड दोज हु आर इन नीड ऑफ दिस फंड्स। तो फिर ये जो पैसा होता है तो फिर उनके पास चला जाता है जो उनको जरूरत है, जिनको चाहिए, बोरोवर्स दैट आर नोन एज बोरोवर्स। द बैंक चार्ज अ हाई इंटरेस्ट रेट। उन पर इंटरेस्ट रेट बहुत सारा होता है। इंटरेस्ट रेट क्या होता है कि एक तरह का इंटरेस्ट होता है, एक तरह का एक्स्ट्रा डिपॉजिट होता है। अगर हमने कोई लोन लिया है तो हम अगर उसे वापस देंगे तो इंटरेस्ट रेट के साथ देंगे। अगर हमने 1 लाख का लोन दिया है तो फिर उसकी पेंशन होगी अलग अलग हाई रेट्स, उसको हमें 1000 पर महीना देना पड़ेगा। तो फिर उसका हाई इंटरेस्ट रेट, वो उसको कहते हैं इंटरेस्ट रेट ऑन दी लोन्स दैट व्हाट दे ऑफर ऑन द डिपॉजिट्स। द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज from the borrowers and what is paid to the depositors is their main source of income. तो इनकम कौन सी होती है बैंकों की? तो इनकम वो होती है जो इंटरेस्ट रेट डाला होता है। इंटरेस्ट रेट क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन द चार्ज। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट ओनली। द डिफरेंस बिटवीन बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम बोरोवर्स। बोरोवर्स को क्या चार्ज किया गया है एंड व्हाट इज पेड टू द डिपॉजिटर्स। क्या हमने डिपॉजिट, पहले तो डिपॉजिटर्स की व्हाट इज पेड टू डिपॉजिटर्स, क्या कुछ पे कर दिया हमने डिपॉजिटर्स को, और क्या हमने चार्ज किया इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट।
So this is a main source of income for the bank. बैंक की ये main source of income होती है. So now we go to this image. Here people make deposits to the bank and people take loans. People repay the loans with interest. Then the poor people make withdrawals and get interest. क्या होता है, जो people होते हैं वो क्या करते हैं, जिनके पास कम मनी होती है वो डिपॉजिट, जिनके पास सरप्लस मनी होती है वो डिपॉजिट कर देते हैं बैंक में, और जिनके पास कम मनी होती है मतलब जिनको नीड होती है वो लोन्स ले लेते हैं, और फिर जो होती है जो लोन्स लेते हैं वो अब रीपे कर देते हैं लोन्स विद इंटरेस्ट, वो जो लोन्स को रीपे कर देते हैं इंटरेस्ट के साथ, और पीपल जो फिर विड्रॉ करने आए हैं वही गेट इंटरेस्ट, उनके इंटरेस्ट मिल जाता है। जिन्होंने डिपॉजिट की थी ना मनी, वो जब दोबारा विड्रॉ करेंगे तो उन्हें इंटरेस्ट मिलेगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू two different kinds of credit situations. Two different credit situations. A large number of transactions in our day-to-day activity involve credit in some form or the other. जो हमारी ट्रांजैक्शन हो रही है हमारी डे टू डे एक्टिविटीज में, उसमें क्रेडिट भी यूज हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ अदर। हम क्रेडिट भी यूज कर रहे हैं। अब क्रेडिट के बारे में जानते हैं, क्रेडिट होता क्या है। Credit or loan. Credit refers to an agreement in which the lender supplies the borrowers with the money. एक तरह का एग्रीमेंट है जो in which the lender supplies the borrowers with the money and goods or the services in the return for the promises to the future payment. तो क्रेडिट लोन में क्या होता है कि जो एक एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट मतलब लिखा हुआ कुछ डॉक्यूमेंट, एग्रीमेंट इन विच द लैंडर, जो लैंडर क्या होता है देने वाला, लैंडर सप्लाइज द बोरर, बोरर कौन होता है लेने वाला, मतलब देने वाला बोरर को लेने वाले को पैसे देता है विद द मनी, विद मनी के साथ या गुड के साथ या सर्विसेज के साथ कुछ भी दे देता है। मैं लैंडर हूँ और आप जैसे आप बोरर हो, तो आपने अगर मुझसे कुछ मांगा, मनी मांगी, गुड मांगी या सर्विस मांगी, तो मैं एग्रीमेंट के साथ दूंगा आपको, मैं ऐसे नहीं देने वाला। मुझे क्या पता कि आगे वाला कब वापस करे, तो मैं एग्रीमेंट के साथ दूंगा, तो उसे बोलते हैं क्रेडिट और लोन। इन रिटर्न टू द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट, प्रॉमिस के साथ मैं दूंगा, अगर मैंने आपको कुछ देना है तो मैं आपको प्रॉमिस के साथ दूंगा कि आपको वो फ्यूचर में पे करना पड़ेगा विद द इंटरेस्ट। सो नाउ let us see how credit works through the following two examples. Festival seasons. It is the festival season 2 months from now, and the shoe manufacturer Salim has received an order from a large trader. एक सलीम है जिसने एक ऑर्डर लिया है लार्ज ट्रेडर से इन द टाउन ऑफ द 3000 पेयर्स ऑफ शूज। उसने क्या लिया है 3000 पेयर्स ऑफ शूज to be delivered in the month of the time. उसने 3000 शूज देगा वो एक मंथ में। To complete the production on time, Salim has to hire a few more workers for stitching and pasting work. He has to purchase raw materials. To meet these expenses, Salim obtains loans from two sources. वो दो sources से लेता है। वो अपना लोन लेता है क्योंकि उसको ना बंदे चाहिए काम करने के लिए। First he asks the leather supplier to supply leather now and promises to pay him later. Second, he obtains loans in a cash from the large trader in advance payment for the 100 pairs of shoes with a promise to deliver the whole order by the end of the month. उसने पहले क्या किया कि एक लेदर जो मास देता है उसको सप्लाई किया और उसे प्रॉमिस किया टू पे हिम लेटर। उसको लेदर चाहिए था शूज बनाने के लिए, तो फिर उसने ना ले लिया और उसने बोला कि मैं बाद में दे दूंगा। तो फिर सेकंड ही obtains loan in the cash in the form of a larger trader as advance payment for 1000 pairs of shoes with a promise to deliver the whole order at the end of the month. फिर उसने क्या किया कि उसने एक कैश ले ली थोड़े larger trader से on the payment of the 1000 shoes. उसने शूज ले दिए, एक 1000 शूज ले दिए ताकि उसको पैसे मिल जाए। उसने क्या किया सेकंड में, वो एक लार्ज ट्रेडर के पास गया, लार्ज ट्रेडर के पास जाकर उसने क्या किया, उसने पैसे मांगे।
थोड़े से पैसे मांगे। क्यों? क्योंकि उसने एक टाउन में किसी को शूज़ पहुंचाने थे, तो उसको ये करना पड़ा। फिर उसने क्या किया, पैसे उससे ले लिए, पर उसने क्या किया, विद अ प्रॉमिस टू डिलीवर द होल ऑर्डर बाय। तो इसका मतलब लगता है कि हमें अगर किसी को पैसे देने हैं तो फिर ट्रस्ट बनाने के लिए प्रॉमिस करना पड़ेगा। उसको ही कहते हैं दैट मीडियम इज नोन एज अ क्रेडिट। क्रेडिट रेफर्स टू एज एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइज द बोरर विद मनी। एक लेंडर जो देने वाला है, एक मिनट, जो देने वाला है मनी, इसके पास बहुत सारी मनी है, और ये बोरोर है, इसके पास कुछ नहीं है। जो देने वाला है वो अपनी मनी, ये वाली मनी इसको देगा इन दी रिटर्न प्रॉमिस लेगा। ये इससे प्रॉमिस लेगा कि मुझे 10 साल के बाद या 1 महीने के बाद मुझे अपना पैसा वापस चाहिए। इस प्रॉमिस को कहते हैं एक क्रेडिट एग्रीमेंट, क्रेडिट। So now, in this case, Salim obtains credit to meet the working of the capital needs for production. The credit helps to meet the outgoing expenses of production. अब उसने जो क्रेडिट मांगा था, अब उसने हेल्प किया उसकी आउटगोइंग एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन। जो उसने क्रेडिट मांगा, जिसने उसने प्रॉमिस किया था, जो उससे क्या हुआ कि जो वर्किंग कैपिटल नीड्स द प्रोडक्शन, उससे क्या हुआ कि ना उसके जो काम पेंडिंग रह गया था वो अब चलने लग गया तो कंप्लीट दी प्रोडक्शन। उसकी अब जो प्रोडक्शन थी वो अब टाइम पर होगी उसकी प्रोडक्शन, और उसकी अर्निंग्स भी इंक्रीज होगी। उसने जो वादा किया था कि मैं शूज दूंगा अपने 3000, बिकॉज एट द एंड ऑफ द मंथ उसने क्या किया, सलीम को एक गुड प्रॉफिट मिला, उसको एक गुड प्रॉफिट मिला, जिससे हमें पता लगता है क्रेडिट देयरफॉर प्लेस एन वाइटल एंड पॉजिटिव रोल इन दिस सिचुएशन। तो फिर ऐसे अगर आप किसी को घर चाहिए, घर एकदम से तो इतने सारे पैसे नहीं आते, तो फिर हमें लोन लेना पड़ता है एक बैंक से, क्रेडिट साइन कर, तो फिर उससे इतने सारे आ जाएंगे, जितनी सारी इनकम हमारे पास मंथ में आती रहती है उसको हम थोड़ा थोड़ा उसमें से देता रहेंगे, जिससे हमारा क्या होगा कि हमारा लोन भी हो जाएगा और हमें प्रॉफिट भी मिल, घर भी मिल गया, और वो भी जल्दी टाइम पर मिल गया हमें। यस, नाउ we will look at the Sapna's problem. Now Sapna, a small farmer, एक small farmer थी, grows groundnut on a 3 acre land. उसकी 3 एकड़ की जमीन थी और वहाँ ना ग्राउंड, उसके पास 3 एकड़ की जमीन है, 3 एकड़ की जमीन है, उसमें ग्राउंडनट उगाती थी। हाँ। She take a loan from the money lender. उसने मनी लेंडर से लोन लिया to meet the expenses of cultivation, hoping that her harvest would repay the loan. Midway through the season, the crop is hit by pest and crop fails. उसमें क्या हुआ, सीजन के बीच में उसने तो लोन ले लिया था, लेकिन मिड में क्या हो गया, उसका क्रॉप फेल हो गई, उसकी क्रॉप को एक पेस्ट कीड़े लग गए और उसकी क्रॉप फेल हो गई। दो सपना स्प्रेज हर क्रॉप विद एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड्स। इसमें उसने फिर एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड्स चाहिए थे उसको, उसे मेक इट अ लिटिल डिफरेंस। उसकी ना फसल खराब होगी, जैसे हमने लंचों के चैप्टर में किया था कि ना वेदर की वजह से उसकी फील्ड खराब हो गई थी, पर उसकी तो जमा खराब हो गई थी, तो हमें चाहिए इसकी थोड़ी सी खराब हो गई थी, तो उसको पेस्टिसाइड्स चाहिए। तो सपना रिपीस स्प्रे करती है फिर पेस्टिसाइड्स, इट मेक्स अ लिटिल डिफरेंस। हाँ, थोड़ा सा उसमें फर्क आता है, उससे पूरा नहीं आता। नहीं, उससे फ़र्क आएगा, उसकी फील्ड जो ख़राब होगी है उससे वो पेस्टिसाइड्स मारेगी, जिससे थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाएगा उसकी फील्ड पर। शी इज़ अनएबल टू रीपे द मनी लेंडर एंड डेब्ट ग्रोस ओवर ईयर। वो अपनी मनी दे नहीं पाई और उसकी ग्रो होती गई एवरी ईयर इनटू अ लार्ज अमाउंट। उसकी इतनी सारी अमाउंट होगी कि वो दे नहीं पाएगी, नेक्स्ट कर्जा है वो बढ़ गया। Next year, Swapna takes a fresh loan for cultivation. It is a normal crop for this year, but the earnings are not enough. उसकी जो crops थी इस बार अच्छे से grow हुई, उसने fresh loan लिया for cultivation, but the earnings are not enough to cover the old loan.
जो उसकी अर्निंग इतनी नहीं मिली, वो उसकी क्रॉप तो उगी लेकिन उसकी अर्निंग इतनी नहीं मिली कि वो जो पुराना लोन है उसे कवर कर पाए। She has to sell a part of the land. तो फिर उसका एक नुकसान भी हो गया, जो उसने लोन लिया था। अभी तक हम एडवांटेज पढ़ रहे थे एक लोन का, उसका कॉन्ट्रास्ट है ये सपनास की। दूसरी उसका नुकसान हुआ लोन लेकर। इसके डिसएडवांटेज है क्रेडिट का, और ये प्रोमिस का एडवांटेज है, और ये प्रोमिस का डिसएडवांटेज है। So now, in rural areas, the main demand for credit is for crop production. Crop production involves considerable cost of seeds, fertilizer, pesticide, water, electricity, repayment of equipment, etc. ये कुछ नहीं, इसमें ये बता रहे हैं कि जो रूरल एरियाज में क्रॉप उगाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। सीड चाहिए होता है, फर्टिलाइजर चाहिए, पेस्टिसाइड, तो ये सब कुछ पूरा करने के लिए हमें पैसे चाहिए। पैसे कैसे आएंगे? दिस इज द मिनिमम स्ट्रेच ऑफ द 3 or the 2 or 4 months between the time when where the farmers buy these inputs and when they sell the crop. वो बाय करने के लिए उसे, ताकि वो अपनी क्रॉप सेल कर सके, तो उसको कुछ बाय करने के लिए पैसे चाहिए। फार्मर begins by beginning the session and repay the loan after harvest. वो उसने लोन ले लिया, उसने लोन ले लिया, हार्वेस्ट के बाद वो चुका देगा जो लोन उसने लिया है। वो हार्वेस्ट जब करेगा, उसको बेचेगा, तो फिर उसके पास मनी आएगी, मनी के साथ वो लोन चुकता कर देगा। रीपेमेंट ऑफ द लोन इज ये जैसे हार्वेस्ट है, वो सारी इसको काटेगा, इसको काट के इसके पास पैसा आएगा, इसके पास पैसा आएगा, तो फिर ये पैसे से क्या करेगा? ये अपना जो लोन लिया था इसको लगाने पर, ये एक तरह इन्वेस्टमेंट है ना, तो फिर ये अपने आप अपना जो लोन है वो चुकता कर पाएगा और ये इसका काम बन जाएगा। रीपेमेंट ऑफ द लोन इज क्रूशियल डिपेंडेंट ऑन द इनकम फ्रॉम फार्मिंग। रीपे क्या करता है? वो डिपेंड होता है फ्रॉम द इनकम ऑफ फ्रॉम द फार्म। अगर इनकम कम आई तो वो रीपे नहीं कर पाएगा, अगर उसको कुछ बेचना पड़ेगा। जैसे ऐसे हुआ था, ये पे नहीं कर पाई, बहुत सारा लोन हो गया, तो फिर उसको अपना कुछ पार्ट बेचना पड़ा। तो ये प्रोमिस काफ़ी हद तक जा सकते हैं। इन स्वापना केस द फेलियर ऑफ द क्रॉप, इसने भी वही बताया। इन स्वापना केस द फेलियर ऑफ द क्रॉप मेड लोन रीपेमेंट इम्पॉसिबल, उसके लिए बहुत इम्पॉसिबल हुआ लोन पेमेंट करने के लिए। शी हैड टू सेल अ पार्ट ऑफ द लैंड, उसको बेचनी पड़ी अपनी लैंड। क्रेडिट इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग, देखो इन्होंने लिखा कि क्रेडिट हेल्प नहीं किया उसको, बल्कि उसके लिए मोर वर्स बन गया। उसके लिए जो 2000 उसने जो पैसे लिए थे 2-3 हज़ार, उसके 2-3 हज़ार बहुत कड़वे पड़ गए, जिसपे वो एक तरह की हार्वेस्ट कर सकती थी। वहाँ पर उसे अपनी लैंड बेचनी पड़ी, जो कम से कम 2 या 3 लाख की तो होगी। तो ओवरऑल उसे प्रॉफिट नहीं हुआ, उस नुकसान हो गया। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट इज कॉमनली कॉल्ड एज डेब्ट ट्रैप। तो डेब्ट ट्रैप कर्जा का एक ट्रैप होता है, कर्जे का एक ट्रैप, जिसमें अगर फार्मर फंस जाता है तो उसका निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो मिडिल क्लास के लोग तो अपने लोन पे कर सकते हैं, पर ये जो स्मॉल केसेस होते हैं उनको नहीं कर पाते, उनको स्मॉल केसेस नहीं कर पाते। क्रेडिट केस pushes the borrower into the situation from which the recovery is painful। अभी इसमें क्रेडिट ने क्या किया? अब क्रेडिट ने फार्मर को ऐसे पुश कर दिया into the situation from which the recovery is very painful, जिससे रिकवरी तो हो जाएगी कभी ना कभी, लेकिन वो उसके लिए बड़ी पेनफुल होगी। In one situation, the credit helps to increase the earning, and therefore the person is better off than before. In another situation, because of the crop failure, the credit pushes the person into the debt trap. जो हमने फर्स्ट केस पढ़ा, फर्स्ट सिचुएशन, इसमें क्या किया कि ये पर्सन को बेटर ट्रीटमेंट मिली, पर जो सेकंड केस था उस पर उसकी क्रॉप फेलियर होने के कारण उसको एक डेब्ट ट्रैप के अंदर फंसना पड़ा। टू रीपे हर लोन शी हैज टू सेल अ पोर्शन ऑफ हिज लैंड, उसका एक नुकसान हो गया। शी इज क्लियरली मोर वर्स देन बिफोर। Whether the credit would be useful or not therefore depends on the risk in the situation and whether there is some support in cases of loss. This means that the chapter is very easy.
to understand. You might know some things already in this chapter. You know about money and this credit, these things, and we have explained everything. So next part we will do in the next Please next wait part. for the next part. Thank you everyone. Hope you understood.